اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھوں جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر، حمد خدا سے تر ہے زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں، حمد خدا سے تر ہے زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں، بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، اللہ اکبر اللہ جے بھارت بھاگیہ وِدھاتا، پنجاب سندھ گجرات مراٹھا دراوڑ اتکل بنگا، وندھیہ ہماچل یمنا گنگا اچل جلدھی ترنگا، تب شبھ نامے جاگے تب شبھ آشیش مانگے، گاہے تب جے گاتھا، جن گن منگل دائک جے ہے بھارت بھاگیہ وِدھاتا، جے ہے جے ہے جے ہے جے 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 ہے۔ جے ہند، بھارت ماتا کی جے۔ میں سارے اور سعودی گورنمنٹ بھی اس کو آبزرو کر رہی تھی کہ کس طرح اس کو آگے لے کے جانا ہے، تو اس بار کی طرح پھر انہوں نے حاجیوں کا جو نمبر دیا وہ بھی کم دیا۔ ہر سال ہم لوگ قریب 6,500 حاجیوں کو سارے کرناٹک سے بھیجتے تھے، لیکن اس بار ہم لوگ صرف 2,500 حاجیوں کو بھیج رہے ہیں۔ اللہ چاہے تو اگلے سال سے انشاءاللہ جو خامیاں ہیں وہ پورے ہوں گی، اور یہ ہم لوگ جو ٹریننگ کے لیے آپ کو ادھر دعوت دیے ہیں، آپ کا جو حج ہو وہ آسان سے ہو، اور جب وہاں جائیں گے تو آپ کو کوئی کنفیوژن نہ ہو، اور آرام سے خوشی سے آپ حج کر کے اپنے ملک کو واپس آئیں۔ یہ ہمارا منصب اور ہمارا اس پروگرام کا ادیش ہے۔ تو میں اس ٹریننگ پروگرام میں ہمارے چیئرمین صاحب رأفت الدین کچھروی صاحب آئے ہیں، میں ان کا استقبال کرتا ہوں۔ ساتھ ہی میں آنریبل ممبر آف پارلیمنٹ اور ہمارے حج کمیٹی کے ممبر جناب ناصر حسین صاحب آئے ہیں، میں ان کا بھی استقبال کرتا ہوں۔ جناب خسرو قریشی صاحب، آنریبل ایکس چیئرمین آف مائنورٹی کمیشن کرناٹکا اسٹیٹ اور حج کمیٹی کے ممبر آئے ہیں، میں ان کا گزارش کرتا ہوں۔ اور ہمارے چاند پاشا صاحب جو فارمر کیا کہتے ہیں خادم حجاج رہے ہیں، انہوں نے بہت کام کیے ہیں حج کے لیے، اور ماشاءاللہ ان کا بھی بہت ہی تعاون رہا ہے اس کرناٹکا اسٹیٹ ٹریننگ میں اور یہ میدان صاف کرنے میں، اور آپ لوگوں کا جو پروگرام ہے وہ آسانی سے ہو اس کے لیے بہت محنت کی ہے ان لوگوں کا، ان کا بھی میں شکر ادا کرتا ہوں۔ اور ہمارے ساتھ میں موہین بھائی آئے ہیں، موہین بھائی بھی جو ہے ہمارے حج کمیٹی کے ممبر ہیں، وہ بھی بہت ایکٹیولی حج میں انوالو ہیں، ٹریننگ پروگرام سے لے کے جو حج کا سلسلہ چالو ہوا تب سے وہ لوگ یہیں پر ہیں، یہیں سے کام کر رہے ہیں، تو میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ساتھ میں ہمارے نعیم صاحب آئے ہیں، بیدر سے آئے ہیں وہ، تو کل مجھے شام میں فون کیا صاحب آ سکتا ہوں، اور باقاعدہ آ سکتے ہیں، بھی آئیے ضرور آئیے بلکہ وہ آئے ہیں، ان کا بھی میں شکر گزار ہوں۔ اور ہمارے کبیر صاحب ہیں، وہ بھی بہت حج کے بارے میں کام کیے ہیں، سینئر ممبر ہیں، ان کو بھی میں استقبال کرتا ہوں۔ گلبرگہ سے یادگیر سے آئے ہیں میڈم، ہمارے حج کمیٹی کے ممبر اور اونلی لیڈی ممبر ہیں، تو میں آف کورس MLA میڈم کنیز فاطمی ممبر ہیں، میڈم ہیں ادھر، تو ان کو بھی میں استقبال کرتا ہوں۔ اور میں آپ سب کا استقبال کرتے ہوئے میں جناب رأفت الدین کچھروی صاحب کو گزارش کرتا ہوں کہ آپ آ کے سارے حجاج کرام سے بات کریں۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بزرگوں اور دوستوں، خوش قسمت حاجی لوگ اور ماں بہنیں،
इस 2 दिन के ट्रेनिंग में और भी आए हुए हमारे बड़े बुजुर्ग लोग, इस डायस में मौजूद मेरे साथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जनाब नासिर हुसैन साहब, कर्नाटक स्टेट हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सरफराज खान साहब, और स्टेज पे मौजूद हमारे हज कमेटी के मेंबर खुसरो खरची साहब, मोइनुद्दीन साहब, चांद पाशा साहब, डॉक्टर कबीर अहमद साहब, रहीमुद्दीन साहब, रुखिया बेगम जी, और हमारे नोडल ऑफिसर जनाब एजाज साहब, हमारे पर्सनल सेक्रेटरी अकरम पाशा साहब, और हमारे कर्नाटक स्टेट हज कमेटी के स्टाफ। आज 2022 का हज का तरबीती कैंप बेंगलुरु में होने जा रहा है। आज और कल 2 दिन का हम यहाँ पे तरबीती कैंप रखे हैं। पिछले कुछ दिन से हमारे ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं, जो हमने कर्नाटक स्टेट में 8 जोन बना करके इस तरबीती कैंप को हमने अमल में लाया है। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी डिस्ट्रिक्ट में हमारे जहाँ भी किए हैं वो सक्सेसफुल हुए हैं। हम शिवमोगा से स्टार्ट किए थे, आज बेंगलुरु में होने जा रहा है। तो हर डिस्ट्रिक्ट जहाँ जोन बनाए थे वहाँ पे हम 4-5 डिस्ट्रिक्ट को जोड़ दिए। जैसा कि बड़ा बेंगलुरु है, यहाँ 2 दिन का तरबीती कैंप, पिछले 2 दिन पहले गुलबर्गा में हुआ जहाँ 2 दिन का कैंप रखा गया। तो उस तरबीती कैंप में ख़ास खूबी तो ये रही कि कोविड की महामारी की वजह से आपको कैसे हज करना है, किस तरह का आपको वहाँ के मालूमात को जानकारी लेना है। तो हमारे जितने भी ट्रेनर्स हैं जो परफेक्ट, वो आपके सामने ट्रेनिंग देने जा रहे हैं। तो मैं तमाम हाजियों से गुजारिश करता हूँ कि आप पूरा वक्त देके इस ट्रेनिंग को हासिल करिए, क्योंकि आपको इसकी ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी है। आप ले चुके भी हैं तो फिर से लीजिए, क्योंकि अभी कुछ हालात बदल गए हैं। वक्त के साथ साथ जो है काफ़ी तकलीफ़ें भी आए हैं, क्योंकि कोविड में 2 साल हज नहीं हो सका। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी हुकूमत ने हमारे कर्नाटक, इंडिया को और कर्नाटक को परमिशन दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ही दिन में हमारे 9 तारीख से फ़्लाइट चालू होने वाले हैं। आप लोग इंशाल्लाह मदीना मुनव्वरा पहुँचेंगे। तो बड़े खुशकिस्मत लोग हैं जो हाजी के लिए सिलेक्शन हुए। मैं उनको फिर से कर्नाटक स्टेट की तरफ से बहुत मुबारकबाद देता हूँ। आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप दुआ कीजिए हमारे स्टेट हज कमेटी के लिए, हमारे मुल्क के लिए, हमारे वतन के लिए, हमारे शहर के लिए, हमारे अड़ोस पड़ोस के लिए, कि सुख में अमन और शांति सुकून में हो। और एक बात ये बताते चलूँ कि कुछ दिन पहले से रूमर चल रहा था कि कुछ कंट्री वाले हज को नहीं जाने वाले, जिसमें नाम इंडिया का भी है। वो फेक न्यूज़ थे, काफ़ी लोग हमें बताते थे, लेकिन सऊदी हुकूमत हिंदुस्तान के हाजियों को बुला रही है, आपकी खिदमत में लगी हुई है। उसके साथ साथ हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हज कमेटी भी आपकी खिदमत में लगी हुई है। कर्नाटक स्टेट हज कमेटी आपकी खिदमत में लगी हुई है। आपको अच्छा से अच्छा सहूलतें दें, अच्छे से अच्छे आपको ट्रेनिंग दें, आपको बहरहाल हर परेशानियों से दूर करें। इस तरह की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। दूसरा और एक सवाल आ रहा था कि जमजम का, कि जमजम हाजी को नहीं दिया जा रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हर हाजी को 5 लीटर जमजम दिया जा रहा है। वो भी हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हज कमेटी से हमें उसका भी क्लियरेंस हुआ है। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कर्नाटक स्टेट हज कमेटी काफ़ी खिदमत कर रही है। इसमें साथ साथ हमारे ईओ साहब जनाब सरफराज खान साहब और इंक्लूडिंग हमारे मेंबर्स काफ़ी हर दिन कोशिश में लगे हुए हैं कि हाजियों को अच्छी से अच्छी सहूलत पहुँचे, उनका अच्छा से इंतज़ाम हो सके, और ये कोशिश करते हैं कि और अच्छा हो सके। इंशाल्लाह अभी 2 दिन में आपका वैक्सीनेशन प्रोग्राम होगा, पोलो ड्रॉप्स होंगे। उसके बाद में आपके लिए हज के फ़्लाइट्स के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी कि कब आपकी फ़्लाइट है, कैसे जाना है। हमारी पूरी स्टेट हज कमेटी के जो हमारे ऑफिसर्स हैं, हमारे जो स्टाफ है, वो आपको पूरी इसके बारे में जानकारी देंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी आपके सामने खड़े होकर रफुद्दीन कचेरी साहब अपनी बात रख रहे थे। वो हज कमेटी के चेयरमैन हैं, लेकिन बहुत धीमी आवाज़ में बात कर रहे थे, ताजुब हो रहा था मुझे। फिर साथ में सरफराज साहब CEO साहब हैं, और साथ में खुसरो कुरैशी साहब हैं, मोइन भाई, हमारे चांद साहब, कबीर भाई,
हमारे नईम भाई और यादगीर से हमारे मैडम जो वहाँ पे शायद ZP मेंबर भी हैं। तो आज बैंगलोर हाजियों के ट्रेनिंग के तरबेती कैंप में जो है सारे आपके साथ में रहकर 2 दिन, अगले 2 दिन आप लोगों को ट्रेनिंग कैसा दी जाती है उसको मॉनिटर करने के लिए सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। बुजुर्गों और दोस्तों, जैसा सरफराज साहब कह रहे थे और उसके साथ में हमारे हज कमेटी के चेयरमैन साहब कह रहे थे, आप तमाम लोग जिनको भी इस बार मौका मिला है मतलब खुश नसीब लोग हैं और लोग फॉर्चुनेट लोग हैं, क्योंकि पिछले 2 साल से हिंदुस्तान के दुनिया के किसी भी कोने से किसी को जो है हज करने का मौका नहीं मिला। दुनिया में ऐसा आलम था कि जो है कोई बाहर नहीं निकल पा रहा था, एक घर से सामने के बगल के घर वालों को मिल नहीं सक रहा था। आप लोग खुश नसीब हैं इसलिए भी क्योंकि जो है पूरे हिंदुस्तान का जो 1,50,60 हज़ार तक का जो कोटा आता था वो घट के 80,000 को वो कोटा को किया गया है। कर्नाटका में 6-6.5 हज़ार का कोटा हुआ करता था, उसको घटाकर 2,500-3 हज़ार का कोटा यहाँ पे कर्नाटका को दिया गया है। तो उसमें आपको मौका मिला है जाकर हज करने का आपको मौका मिला है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ बार बार कि आप लोग खुश नसीब लोग हैं। अब लोग कहते हैं कि जब दूर दूर से जाते हैं ऐसी मुक़द्दस जगह जब जाते हैं तो कुछ ना कुछ लेके आते हैं, सारे अपनी बात अल्लाह के सामने जो अपनी बात रख के वहाँ पे सारे अरकान पूरे करके आप लोग यहाँ पे आते हैं। तो अभी चेयरमैन साहब कह रहे थे चाइना ओमन के लिए दुआ करेंगे। आप तमाम लोगों को सियासी हवा क्या है, क्या हिंदुस्तान में हो रहा है, क्या कर्नाटका में हो रहा है, किस तरह के हालात से हम लोग गुजर रहे हैं, किस तरह से जलील किया जा रहा है, किस तरह से ह्यूमिलेट किया जा रहा है, लगातार आप हर दिन टीवी पे अखबार पे हर जगह देख रहे हैं। मेरे एक मुसलमान होने के नाते, एक पार्लियामेंट मेंबर होने के नाते ने, एक मुसलमान होने के नाते आप तमाम लोगों से मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि जब आप वहाँ पे जाके दुआ करें, आप ज़रूर अपने लिए, अपने अहबाब के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने बच्चों के लिए आप दुआ करते हैं, आप दुआ कीजिए। उसके साथ में जो है जो इतनी बड़ी तादाद में हम लोग यहाँ पे हिंदुस्तान में रहते हैं, जो बार बार कहते हैं कि हम 25 करोड़ हैं, 22 करोड़ हैं, 30 करोड़ हैं, हम जो बार बार जो कहते हैं, तो ये लोग जो यहाँ पे हिफाजत से रहें, सुकून से रहें, इनको हर तरीके की जो सहूलियत जो मिलती आ रही है वो मिलते रहें। और जिस तरह से थर्ड ग्रेड सिटीजन करने की जो कोशिश की जा रही है, इन तमाम चीज़ों से हम लोग बचें। हिंदुस्तान एक सुकून की जगह हो, हिंदुस्तान एक चैन अमन की जगह हो, हिंदुस्तान एक पीसफुल और डेवलपिंग कंट्री हो, इसके लिए आप दुआ करें ताकि हिंदुस्तान का अगर डेवलपमेंट होता है तो हर शख्स उसमें, चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, उसका डेवलपमेंट होता है, उसके लिए आप दुआ कीजिए। आप ज़रूर अपने दोस्त, अहबाब, फैमिली मेम्बर्स के लिए करते करते देश का और देश में जो खासकर जिनके ऊपर जो गुजर रहा है, खासकर मैं मुसलमानों की बात करता हूँ, उनके लिए भी आप लोग वहाँ पे दुआ करके आए। मुझे उम्मीद है आपकी दुआएं कबूल होंगे और आने वाले दिन जो है हमारे लिए बहुत बेहतर होंगे। और इसके साथ में मैं कमेटी के सारे मेंबर्स को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, क्योंकि पिछले 2-3 मीटिंग्स जो हज कमेटी के हुए हैं उसमें बहुत डिटेल में हम लोगों ने बात की है और सारे मेंबरान जो है बहुत ही एंथुजियास्टिकली कैसा हम लोग जो है हज के प्रॉपर्टीज, हज कमेटी के प्रॉपर्टीज बढ़ाएं, हज कमेटी के एसेट्स बढ़ाएं, कैसा हम मैंगलोर में जो है एक नया हज भवन बने, ये जितना शानदार हज भवन यहाँ पे बनाया गया है, जो भी इसमें तामीर करने में ताउन किए उन तमाम लोगों को हम लोग को दुआ करना ही है। मंगलूर में इसी तरह का हज भवन बनाने की जो है कोशिश की जा रही है। ज़मीन की जो हम लोग ज़मीन को आइडेंटिफाई किए हैं वहाँ पे हज भवन इंशाल्लाह इसी कमेटी के थ्रू वहाँ पे बनेगी। मैंगलोर में जो है गुलबर्गा में और हुबली में यहाँ भी जो है जगह आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रही है, वहाँ भी हज भवन हम लोग बनाएंगे ताकि जो है कर्नाटका में 4 कोने में 4 हज भवन हो, ताकि वहाँ के लोकल लोगों के लिए हम लोग ट्रेनिंग भी दें। 1 महीना कम से कम उसका हम लोग पूरी तरीके से यूटिलाइज करें और अगले उसके बाद 11 महीने वो कम्युनिटी के दूसरे एक्टिविटीज़ को उसको हम लोग यूज़ करें। इन तमाम चीज़ों की कोशिश कर रही है। आप लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ कि जब आप जाएँ हमारी कोशिशात के लिए भी आप दुआ करें ताकि आने वाले दिनों को हम लोग हमारी जो कोशिश है वो सक्सेसफुली मुकम्मल हो। कहा गया कि मैं हज की अहमियत पर और हज की फजीलत पर बात करूं, तफसील से बात करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि हज की अहमियत और फजीलत
آپ حضرات کو اگر پتہ نہ ہوتی تو آپ حضرات اپلیکیشن کیوں ڈالتے ہیں؟ آپ نے اپلیکیشن ڈالا اسی وجہ سے کہ آپ کو پتہ تھا، سب معلوم ہے حج کی اہمیت کے بارے میں، فضیلت کے بارے میں. اس لیے یہ ایسا موضوع ہے کہ اس پر بہت زیادہ وقت لینے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ اس کے بعد بہت سارے جو پروگرامز ہیں جس میں پیکنگ کا ہے اور حج کیمپ کا ہے، کیسے روانہ ہونا ہے، کس طرح سے، اور پھر اس کے بعد مناسک حج، یہ ساری تفصیلات آئیں گی. لیکن شروعات کے لیے برکتاً یہ ایک موضوع رکھا گیا کہ جب سارے ہی لوگ یہاں جمع ہیں تو جس عبادت کے لیے روانہ ہو رہے ہیں اس کی اہمیت تھوڑا سا پھر تر و تازہ ہو جائے، تاکہ خصوصیت کے ساتھ قرآن شریف کی جس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے تعلق سے ارشاد فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث میں حج کی فضیلت پر جو کچھ ارشاد فرمایا، اس میں سب سے اہم چیز نیت ہے. اسی نے فرمایا کہ ایسا حج جو اللہ قبول کر لے اس کی جزا صرف اور صرف جنت ہے، یعنی جنت کے سوا کوئی جزا نہیں. اور ہر عمل، کوئی بھی عمل جب بندہ مومن ادا کرتا ہے تو نیت سب سے بنیادی چیز ہے. اگر اس کی نیت صحیح ہے تو اس کے بعد اس کا وہ عمل اور اس سے متعلق جتنے اعمال ہیں وہ سب اللہ کے بارگاہ میں قبول ہیں. لیکن اگر نیت درست نہ ہو تو اتنی ساری محنت کرنے کے بعد ایک مشقت ہوتی ہے، لیکن اسے جس عمل کا درجہ ملنا چاہیے، عبادت کا جو درجہ ملنا چاہیے، اس سے بندہ مومن محروم ہو جاتا ہے. خصوصیت کے ساتھ حج کیوں کہا گیا؟ فرمایا کہ حج ایک ایسی عبادت ہے جو بند کمرے میں ادا کی جانے والی عبادت نہیں ہے. دعا کرے، کوئی جلد بازی نہ ہو کہ آپ نے بس مختصر سی دعا کر لیا اور چلے گئے. میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جب حجۃ الوداع کے موقع پہ میرے نبی نے دعا فرمائی تھی، 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ نہیں، اپنی روایتوں میں پڑھا، میرا دل بھی جذباتی سے خالی نہیں ہوا، اس لیے کہ 6 گھنٹوں سے زیادہ میرے نبی نے اس امت کے لیے دعا کی. ہم 10 منٹ 15 منٹ دعا کر کے ادھر ادھر دیکھتے ہیں کہ میں نے بہت کچھ دعا کر لیا. دعا کرنے کا وقت ہے. آپ جیسے ہی مکے میں جائیں، کعبۃ اللہ پہ نظر پڑی پہلی، آپ جم کے دعا کریں. اس وقت دعاؤں کی بہت ضرورت ہے. آپ ہم سب کے نمائندے بن کے جا رہے ہیں. ہمارے دل میں بھی تڑپ ہے کہ اے میرے رب، میں بھی تیرے گھر پہنچنا چاہتا ہوں. یا بہت سارے ایسے میرے پاس آ کے کہتے ہیں کہ حضرت میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، اس لیے کہ پہلے تو حج کمیٹی سے 1 لاکھ 1.5 لاکھ میں حج ہوتا تھا، آج 4 لاکھ سے زیادہ ہے. اس یا پتہ نہیں کتنا طے کیا ہے، 4 لاکھ روپے، اور پرائیویٹ جانا ہو تو 7 لاکھ روپے. اب غریب بیچارے کیا کریں گے؟ اب یہ 1 لاکھ 1.5 لاکھ کی امید کر بیٹھے تھے لیکن وہ جا نہیں پائے. میرے پاس آ کے اپنا درد رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سارے کینسر ہو رہے ہیں اور دوسرے احباب جانے کی فکر کر رہے ہیں. لیکن جو مقدر ہے وہی ہوگا. اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، اس لیے آپ جانے والے ہیں. آپ بڑے خوش نصیب حجاج ہیں، اس لیے آپ جائیں تو اللہ کے گھر دیکھتے ہی آپ جم کے دعا کریں. پھر اس کے بعد حجر اسود کے پاس جائیں. وہاں کے جو ارکان ہیں کہ آپ نے نبی علیہ السلام نے چھری سے بھی اشارہ کر کے، کبھی ہاتھ سے اشارہ کر کے، کبھی چوم کے بتایا کہ یہ تینوں طریقے ہیں. آپ یہ نہ سمجھیں کہ مجھے چومنے کا موقع نہیں ملا تو میں محروم ہو گیا. قربان جائے میرے نبی پہ کہ آپ نے تینوں طریقے امت کو بتا دیے. جو تمہارے لیے سہولت سے مل جائے وہ کر لینا. اللہ تمہارے اس ارادے کو، اس نیت کو قبول کر لینے والا ہے. آپ نے کیا. چونکہ 2 سالوں سے نہیں گئے، بہت سارے لوگ اڑن پڑ رہے ہیں. رمضان میں جب ہمارے احباب مجھے بتائے اتنا بڑا مجمع اور وہ بھی اندر جانے کے لیے احرام باندھنے والوں کی لیے اجازت اور بقیہ لوگوں کو اوپر جو انتظامات ہوں گے، وہاں مکے سے مجھے فون کر کے پوچھ رہے ہیں حضرت میں کیا احرام جھوٹا باندھ کے چلے جاؤں؟ آپ ہرگز ایسا دھوکہ نہ دیں. جی ہاں، آپ اگر کر سکتے ہیں اوپر سے طواف کر لیں. یہ جھوٹ موٹ کا احرام کی چادر باندھ کے اندر چلے جائیں. کیوں کیے؟ تاکہ عمرہ کرنے والوں کے لیے آسانی اور سہولت ہو. اگر ہم غلط کام کر رہے ہیں اور ہم نے سوچ لیا کہ چلو مجھے موقع مل گیا عبادت کرنے کا، قریب سے طواف کرنے کا،
आप कितने लोगों को तकलीफ दे रहे हैं, जरा ये सोच लें। मैंने बड़ी सख्ती से मना किया, आप इस तरह से ना करें। अगर मौका हो तो जाए, नहीं है तो जैसी इबादत कर सकते हैं वैसी इबादत करें। अल्लाह आपकी इबादत को जरूर कबूल करने वाले। तो ये आप जरा 3 चक्करों में क्या करते हैं, जरा एंड के चलते हैं। क्यों? उस वक्त मक्के वाले ये कहा करते थे, मदीने की बुखार ने मदीने वालों को बीमार कर दिया है, इसलिए ये चलने के भी काबिल नहीं है। मेरे नबी ने फरमाया, अरे हाजियों जरा सीना तान के चल के दिखाओ 3 चक्करों में कि मदीने को जाकर मदीने की बुखार ने हमें कमजोर नहीं किया है बल्कि ताकतवर बना दिया है। मर्दों के लिए ये है, औरतों के लिए नहीं है। औरत अपनी चाल चलेगी कि अब यहाँ जरा सीना तान के अकड़ के चल रहे हैं, वो उस वक्त के लिए था, लेकिन नबी ने बता दिया कि इस अदा को तुम हमेशा के लिए रख लेना। बताना कि हम मुसलमान हैं, हम हिम्मत वाले हैं, हम इसी तरह अपनी नबी की अदा को चल के अमल करके दिखाएंगे कि देखो हम ताकतवर हैं। आप ये किए 3 चक्कर 4 चक्कर नॉर्मल कर लिया, फिर आए नमाज पढ़े और उसके बाद सही के लिए गए, आपने सही 7 चक्कर लगा लिया। अब हर चक्कर में काबतुल्लाह की तरफ नजर करते रहे, दुआ करते रहे, फिर उसके बाद आपका उम्रा खत्म हुआ। अब बकिया दिन हो गए, जैसे रिजा साहब ने फरमाया कि जरा दूर अजीजिया में एक मकाम है, तो आप यहाँ से मुमकिन हो तो ऐसा आए कि 4 नमाजें कम से कम आपकी हो जाए, या 5 नमाजें अगर मुमकिन हो तो आप अदा करने की कोशिश करें। लेकिन हज के अय्याम तक आपकी नमाजें खज़ा नहीं होनी चाहिए। मुक़द्दस सरज़मीन में जाए और आप बस इसलिए कि आप दूर पड़ेंगे, हरम सामने नहीं है, काबा सामने नहीं है, अब नमाजें भी छूट रही हैं और दूसरे काम में हम लग गए, ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। हज के दिन आने तक भी आप पूरे एहतिमाम के साथ नमाजों का एहतिमाम करें। फिर हज के अय्याम आए तो आप वो जज्बे के साथ जाए कि अल्लाह ने आपके लिए इस साल हज के लिए कबूल फरमाया। जी हाँ, पहले 40 लाख 50 लाख लोग जमा होते थे, लेकिन इस साल थोड़ा सा उन्होंने कम किया है। जो भी हो, अल्लाह ने आपको मुंतखब कर लिया है। पूरे मोहब्बत के साथ जाए। 8 जिलहिज, जी हाँ, आप मिना में जाएंगे, नमाजें 5 अदा करेंगे। अब सूरज जैसे ही निकला आप अरफात को जाएंगे, अरफात में आप नमाजें पढ़ेंगे। मगरिब की नमाज वहां अदा किए बगैर आप मिना यानी मुज़दलिफा आएंगे, वहां नमाज पढ़ेंगे मगरिब और इशा। लेकिन अरफात का जो मैदान है ये असल जगह है आपके लिए।